Good morning to all. I am Professor Amit Avasthi. As a mentor of Yarn Innovators Group, welcomes you in this online robotics webinar. Today we have a guest, Priyanka Shroff ma'am from IIT Powai. It's an honor to have you on this webinar, but maybe due to some technical issues, she will join us on 10:45 a.m. So, dear all, I would like to introduce you about my three gems and how our journey begins. Team Yan is named by Yogesh Kumar Sahu, Ayush Pathak, and Niket Vashwakarma. Basically, we works as skill center to provide a platform where learners can acquire required knowledge and skills on their career enhancement. We work on technology based working models. As soon we launched our training program. Now I would like to invite my three jams. Over to you, Yogesh. Yes, sir. Now Yogesh will be showing the image, the presentations, and he will deal all the contents to you. Yeah, Thank you, Yogesh, sir. go on start. Yeah. Everyone, please look at the Niket is presenting the screen. So, I'm Yogesh. I'm in currently second year from studying in LCIT college. So, how we started with Yan? When we joined college, we have just wasted our first and second year by just passing the semester with 0% knowledge. Then, by the end of second year, we decided to do something innovative for ourselves. But as a student who want to do something innovative, the main issue that arises is the money or the source, and we didn't have any of these. We cannot ask for money to the parents as we are not sure about how the yarn will work or not. After a few days, we got to know about ATL labs. From then, we started teaching government school students. We taught the students and also we learned from them. We built many projects while teaching them based on real life problems. Also, we built many projects for social welfare during this COVID 19, such as automatic hand sanitizer dispenser, smart dustbin, robo nurse, magic bell, etc. And now we are trying to grow our team Yarn by the beginning of 2021. And also, we welcome you all, the students who want to learn something new with us. So, what is our mission? Our mission is to turn the ideas into innovation. Innovation means to find the solutions of real life problems, problems such as voice clearance for the paralyzed people who cannot speak properly, the blind people who cannot see the world. So by Yarn, we can make them to see or to speak properly. So for further explanation, I would like to call Nikit. Hello, Nikit. Yes. Hello everyone. I'm Nikit and I'm also doing graduation from LCIT College Bilaspur. So now we will discuss about how we work or deal with it. We first took feedbacks from the people and the feedback is about what are the problems they are facing in their daily lives as explained by Yogesh. After taking feedbacks from the people, we first examine that if the problem is feasible to find its solution. If yes, then we deal with the algorithms components that can be used to solve those problems. And once we found the solutions, we start to develop it. After development, we test these projects within ourselves. Then we test them in the public and took the responses. If the responses are positive, then we implement this project publicly. This is how we turn ideas into innovation. So further explanation, I would call to Yogesh. As Amit sir has told, we have done many projects during this lockdown. He has shown the newsletters, media gallery, and for further, I would like to tell you about our future projects. Our future projects are we are working on the future projects such as smart garbage monitoring system. In this system, we can monitor the
garbage trucks in the city, iRobot using IoT that can be used in industrial vision glasses, as sir has shown you for the blind people. AI-based smart rover that can be used through GPS tracking, auto robot based on Google Assistant. When we give command to the Google Assistant, the robot will work as according to command. Yeah, now we'd like to invite calling to Ayush Padak. Ayush, are you there? Yeah, sir. Yeah, just Ayush. Actually, I just want to introduce you my one of the main member, Ayush Padak. He's just a founder member of Yan. Basically, Yogesh, Ayush, and Nigit. The three are the founder members, and I'm just calling Ayush as a flying machine man. He already walks on flying machine type. So Ayush, you can introduce and go with that. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. Am I audible to all? Yes, 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 yes. sir. So, if you have any questions or any queries, please turn on your mic if there is no noise in your background. So it's better to get a response from you. Okay? Yeah, go ahead, Ayush. Yeah. So basically, as Yogesh and Nikit introduced you to Yan, Yan is basically a organization which helps to community to provide a better solutions to problem. So uh, at so we want you, all of you, to join Yan, but there is some problems issues which you are going to face if there is any, like, Yan is going to solve problems, but there is some situation that where we creating the bridges to their solutions with the problem. So you have to learn with Yan, and you have to do the solutions with the Yan, but there is no cost for there no cost for the joining or any type of learning, or if you want to say any type of hidden charges, like anything. You just have to give your proper 100%, your 100% just give only, and you have to learn something new for the innovation, but there is something you have to explore on yourself. As we know, there are some many ideas, and we have to we have to execute them in real life. So as Nikit and Yogesh says, we have a future projects, and if you anyone from you have a great interest in this field, so you have please join the team and make us more powerful for giving a better future to our locality or community. Okay, thank you. Okay, thanks. Now, Yogesh, do you explain about what's the day when we start and all this? Yogesh? Yes, sir. Yeah. Actually, when we started Yan, we didn't have any idea that how we can proceed to in further with Yan. But as time goes, uh, we come to the hurdle that means real life problems. We examine those problems. For example, we saw the blind people; they cannot see. Even then, they have the potential to read. Means they have a special language. They learned. They know more than ours. Means more than normal people. So we tried to make them to see the world, not through means not the image, but how they can feel the things that happens in their surroundings. So we made this vision goggles, but during this lockdown we cannot implement these goggles in the schools that we have planned to implement them in the government school Tipra for the blind students.
So we have tried something new that can be implemented during the time of COVID-19. So we have made smart dustbin, automatic sanitizer dispensers. This project have been donated to uh, uh, Balaji Temple, and uh, Thana Kotwali, and this Railway Magic Bell hospitals have actually. been Yeah, railway donated. hospital actually. Robaners have been distributed to railway hospitals. The Magic Bell, this is the current project we have made. This is donated to Kali Mandir Tifra. So this is the things we made with in the yarn for yarns. If you join yarns, then you will learn how to deal with the real life problems. We first find the things that really it happens or not. Then we examine and try to solve those problems by research and development. We have the aim that if we cannot do 100% of this, we can at least we have to do 99.9%. So this is the main motive. We have taught school students from Chakarbhata Higher Secondary Boys School. uh, we started teaching them in the year 2019 at the end of this year, but now they have potential to make their own IoT projects, embedded systems. Meanwhile, we can say that they are more potential than the college student from the first year. Thank you, sir. Okay, actually, Yashwant sir is with us. He Thank you, is a sir. mentor. Yashwant sir is with us. He is a mentor of Government School Chakarbhata. I would like to thank you, sir. एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यान का हमारा मोटिव क्या है. मेरे तीन स्टूडेंट्स, मेरे तीन जेम्स जो है, योगेश, आयुष और नगद, हमने इन तीनों के फर्स्ट वर्ड से हमने यान ग्रुप फाउंड किया हुआ है. हमारा मेन मोटिव है लोगों को ट्रेन करना. जिस तरह से टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, उस तरह से हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को टेक्निकली इनहेंस करें, ताकि वो आने वाले समय में जो भी न्यू, जैसे हम बात करें आईओटी, आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन तीनों सेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा डिमांड रहेगा. तो यान इनोवेशंस का हमारा मेन मोटिव ये था कि हम स्टूडेंट्स को इन तीन पोजीशंस में ट्रेन करें ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें. तो मैं आप सबसे ये बोलना भी चाहूंगा कि यान इनोवेशंस के तहत हमने इस बार हमारी बात हुई आईआईटी पवई से, और आईआईटी पवई हमारे साथ, हम उनके साथ, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि उनके साथ हम काम कर पाए. तो उसी के तहत हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसके तहत हम आईआईटी पवई हमको उसके वीडियोस, लेक्चर्स, जो उसने मटेरियल्स बनाए हुए हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, हम आपको डे बाय डे हमने लेक्चर शेड्यूल्स बना रखे हैं, वीडियो लेक्चर्स प्लस क्विज. हम आपको हर दिन के हिसाब से ये वीडियो लिंक्स और क्विज लिंक हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम रोज 10 o'clock हम इसको अपलोड करेंगे. आपको इन वीडियो लिंक्स को देखना है. इट्स इजीएस्ट लैंग्वेज, हमने इसको देख रखा है, बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज है. उस लैंग्वेज उस वीडियो लिंक को देखने के बाद आपको उस क्विज का आंसर करना है. और लास्ट दिन हम ये 5 दिन का शेड्यूल है, जिसके अंतर्गत हम आपको 19 वीडियोस देंगे. आप इन 90 वीडियोस को समझने के बाद आप पूरा का पूरा आर्डिनो समझ पाएंगे. जो हम रोबोट्स आपको दिखा रहे हैं, जो हम रोबोट्स बना रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इन वीडियोस में दी गई है. इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम का हमने इस्तेमाल यूज किया हुआ है. हम दोनों वीडियोस लिंक्स दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी लिंक्स. जो कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में लिंक्स को देखिए और आप इसका आगे अपने करियर में एनहांसमेंट कर सकते हैं. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, for at 10:45 a.m. The madam will be join us. तो मैं चाहूंगा कि योगेश, कैन यू डील फॉर दैट? यस सर. एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव है ये है कि जो आज की जनरेशन है, मतलब जो जैसे ही 12th के बाद जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि
अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, एटलीस्ट वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंस बन सकते हैं। और सेल्फ इंडिपेंडेंस कैसे बनेंगे वो? कुछ अपने तरफ से कुछ इनोवेटिव करके। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे हमने कॉलेज ज्वाइन किया तो हमें पता नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके क्या करोगे? तो इंजीनियरिंग करके हम कर बहुत सकते हैं, लेकिन वो अपने अंदर वो होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए। तो वो हमने सोचा, वो हमें रियलाइज हुआ सेकेंड ईयर में, मीन्स जब हम थर्ड सेमेस्टर में थे तब। थर्ड सेमेस्टर में तब हमें वो रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें अब कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया फिर, हमने आयुष, निकित और मैंने मिलके एक टीम बनाई ज्ञान। लेकिन उस समय सिर्फ एक नाम था। उसमें क्या होता था, हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। ज्ञान तो बन गई टीम, लेकिन उसमें करना क्या है। तो हमने अमित सर से भी पूछा, तो अमित सर ने कहा कि आप कुछ इनोवेशन करिए। तो फिर इनोवेशन में फिर हमने सोचने लग गया कि इनोवेशन इनोवेशन क्या करना है। तो इनोवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था सोर्स, चाहिए था। तो सोर्स हमारे पास था नहीं। सो वी अप्रोच्ड एटीएल लैब। हम एटीएल लैब में गए, वहाँ के बच्चों से मिले। तो उनको देख के ऐसा लगा कि अरे इनको तो मतलब अभी आता नहीं है। उस समय हमें भी कुछ नहीं आता था, तो हमने सिर्फ ज्वाइन किया उन्हें, और उनके साथ साथ हमने सीखा। और वो जो बच्चे हैं अब इतने वो कैपेबल हो गए हैं कि वो खुद के एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं। और उनको सिखाते सिखाते हम भी ये सीखे कि एम्बेडेड सिस्टम पे कैसे वर्क किया जाए। और हम जब भी अपने सराउंडिंग को देखते हैं अभी, तो हमें ये लगता है हाँ ये तो बन जाएगा। हम उस सेम टू सेम नहीं बना सकते, लेकिन उस तक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑटो रोबोट है, तो ऑटो रोबोट में अभी आपने यूट्यूब में देखा होगा कि ये डांस करता है, इसमें एंग्री रिएक्शन है, जंप करता है, सोता है। तो ये है। तो हमने इसमें इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट लगा दिया। गूगल असिस्टेंट में क्या होगा, जैसे ही हम उसमें कुछ रिएक्शन देंगे, मीन्स कुछ कमांड देंगे, दैट ऑटो रोबोट प्लीज स्लीप, देन ही विल इट विल स्लीप। और जैसे कुछ और कमांड दिए, ऑटो रोबोट यू आर नॉट हैप्पी, तो वो सैड हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर हम डील करते हैं। अब जैसे कि जो नेत्रहीन जो बच्चे हैं, मीन्स व्यक्ति, उनमें क्या रहता है कि उन्होंने कभी देखा नहीं है उसको, दुनिया देखी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनको एटलीस्ट दुनिया नहीं दिखा सकते तो एटलीस्ट हम उसको फील करा सकते हैं कि हाँ यू कैन डू दिस, यू कैन फील इट। तो हमने वो स्मार्ट ब्लाइंड गॉगल बनाया, विजन जिसको हमने नाम दिया था। तो उसमें क्या होता है, वो वाला जो है गॉगल, उसको पहनने के बाद वो जब आगे मूव करेगा, मीन्स आगे पीछे कहीं भी मूव करेगा, सो दैट ही कैन फील व्हाट्स अराउंड हिम। ये एक प्रोजेक्ट था। और एक जो प्रोजेक्ट है वो हमने होम ऑटोमेशन बनाया। होम ऑटोमेशन में means you can control the home appliances using Google Assistant, that when you say Google please switch on the lights, and lights will be on. You'll say Google switch on the fan will be on. Also we have made many projects based on security, such as security based door lock, RFID, etc. हम इन्हीं चीजों में काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े, जिनसे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमसे जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको फीस देना है या फिर ऐसा कुछ पे करना है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली यू हैव टू डू इज टू थिंक समथिंग न्यू। हम अपनी टीम में सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब चाहते हैं जो कुछ नया सोच सके। हम उनसे ये नहीं चाहते कि वो फीस पे करें, कुछ एक्सपेंसिव अपनी तरफ से लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी पोटेंशियल हमें दिखा सकते हैं। अगर वो पोटेंशियल हमें लगेगी कि हाँ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, देन वी विल कंसिडर यू एज आवर टीम। तो ये जो Thank, वेबिनार है, ये बस एक वही वे है, मीन्स जो लोगों को जोड़ने का वे है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नए नए जो स्टूडेंट हैं उनको जोड़ रहे हैं। ओके योगेश, एक्चुअली मैं आपको सभी को बता दूं कि जिस हिसाब से आप जान रहे हैं कि आने वाला जनरेशन जियो 5G और नए सेल फोन कम्युनिकेशंस मतलब मोबाइल सिग्नल्स पे जा रहा है। जिस हिसाब से आपने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने मोबाइल फोन से बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन ली। इस तरह से फ्यूचर आपके मोबाइल फोन और नेटवर्क पे बेस्ड है। जैसे कि हम अभी योगेश ने बताया कि हम ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि आपके वॉइस कमांड पे रिएक्शन करेगा। आप सभी को शायद अलेक्सा पता होगा। अलेक्सा एक डिवाइस है, और इस गूगल के भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि वॉइस कमांड पे काम करते हैं।
वो सारे काफी कॉस्टली डिवाइसेस होते हैं। हम वही मैकेनिज्म, वही फीचर्स वी कैन प्रोग्राम फॉर दैट, और उससे हम इजीएस्ट कॉस्ट एफिशिएंट वे में बनाते हैं ताकि आप अपने घर में यूज कर सकें। जैसे कि आप आज के डेट में सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, तो हमने डोर लॉक सिस्टम्स, ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम्स, अभी हम आईपी कैमरास पे काम करेंगे आगे। किस तरह से कोई अगर मूविंग एक्टिविटीज अगर कैमरा पे शो होती है, तो वो आपके इमेजेस को क्लिक करके सीधा आपके मोबाइल फोन पे, आपके व्हाट्सएप पे, या आपके जो भी आप ऐप यूज करते हैं उन एप्स में उसके पिक्सल, उसके पिक्चर्स फ्लैश कर दे। तो हम अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव था कि स्टूडेंट्स को जोड़े और उनको सिखाएं कि किस तरह से काम होता है और काम करते हैं। तो हम आगे भी इस तरह के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही हमारे पास, हमारे साथ यान इनोवेटर के हमारे मेरे जो मेरे मेंबर है आयुष पाठक, तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। उसमें हम मैं आपको दिखाऊंगा कि आयुष पाठक जो है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आयुष पाठक जो हमारे साथ हैं, आयुष आर यू देयर? यस सर। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुष पाठक जो है, वो हमारे ड्रोन जो फ्लाइंग मशीन मेन डिपार्टमेंट देखते हैं। तो आयुष कुछ बताएंगे, आपने ये फ्लाइंग मशीन का आइडिया कहाँ से आया और आप इस डायरेक्शन में गए और काफी सारा काम आप कर रहे हैं? यस सर, अब शुरुआत से आप भी जान रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी थी उस समय। जो भी अच्छा दिखता था उसी में मन लग जाता था। तो उस समय ड्रोन्स जब बेसिकली अच्छे लगने लगे बेसिक वाले, तो फिर उन्हीं में चले गए। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस भी है मेरा। मैं शेयर करना चाहूंगा कि लाइक जब हमने शुरू किया था, तो सबसे बड़ा एक जो इशू आता है सामने, वो दो चीजों का आता है। एक होता है रिसोर्स और दूसरा होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब अगर आपको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपको कुछ वहां से रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलता है, तो एक अंदर से वो फीलिंग रहती है कि इसमें अपने को सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो सेम थिंग हम लोग के साथ था। मतलब हमारे पास रिसोर्सेस शुरू में कुछ नहीं थे। मतलब हर एक जो कंपोनेंट होता है वो बहुत महंगा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मिनिमम मतलब 500 के नीचे तो आप कुछ कर नहीं सकते, स्टार्टिंग होता है। मतलब आपको एक अगर शुरू भी करना है तो कम 5-6 हजार चाहिए, और घर वाले नई चीजों के लिए तो देते नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग के अंदर डिसअपॉइंटमेंट था। मतलब बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ। तो सबसे मेन जो क्रेडिट है, जो आज यान अभी जितना भी है 1 साल में जितना भी बढ़ा है, वो सारा क्रेडिट तो अभी अमित सर को ही जाता है, क्योंकि हमारे मोटिवेशन वही थे। जब भी हम डिसअपॉइंट होते थे कुछ भी था, तो बस एक मीटिंग करनी रहती थी क्लास में सर के साथ, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन 10 मिनट्स। मतलब फिर वही हो जाता था, नहीं यार सर सही बोल रहे हैं, अपने को कुछ करना चाहिए। एंड वहीं से ये सब शुरू हुआ है, भारत माता स्कूल से। और वहां से आज हम 5 स्कूलों में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब इसी चीज का है। बट ये एक आप सभी को मतलब एज एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा, जितने भी इंजीनियर्स हैं, कि जैसे जो ये बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है या इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, उसमें ये बात है कि अगर आपके अंदर स्किल है, तो यहाँ पे जितनी भी जॉब है ना, वो सब आपके लिए है। आपके लिए आपके अंदर बस स्किल होना चाहिए। अब जैसे हम योगेश एंड निकित, इन्होंने जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर ये प्रोजेक्ट्स कोई कंपनी ही देख ले, तो इनको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, इनको कोई रिटर्न पेपर की जरूरत नहीं है, इनकी डिग्री भी अगर एसी है तो फिर ऑल ओके। इनको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगा, ना कोई कॉलेज ना कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती। तो दैट्स ऑल। जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंस करती होती है स्किल। आपके अंदर स्किल होना चाहिए। जैसे मेरा ही मैंने जब ड्रोन बनाया था पहला वाला, तो सबसे पहली बार ये हुआ था कि वो फेल हो गया था। बट फिर भी महीने 2 महीने बाद जब मैंने ट्राई किया, तो ये जो आप लेटेस्ट हेक्साकॉप्टर देख रहे हैं, इसे बनाने में 1.5 साल लगे हैं पीछे। सो अब इस हेक्साकॉप्टर की मदद से ही आज मेरा भी प्लेसमेंट दिल्ली की एक कंपनी में हुआ है। अभी बोल सकते हैं मेरा भी मैं अंडर ग्रेजुएशन में ही हूँ, और अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है। बट फिर भी क्योंकि स्किल है, यहाँ जो गुरुग्राम है, यहाँ आईटी में इतनी रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की, इतनी रिक्वायरमेंट है इन सब के वर्क्स की, कि बस लोगों को चाहिए कि आपको आता है, आपके पास स्किल्स है तो आप ज्वाइन कर दीजिए।
तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि हमें ये चीज़ महसूस की प्रॉब्लम कि हमारे पास रिसोर्स नहीं रहते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हमें नई चीज़ सीखने को नहीं मिलती है और जब हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। वही सेम चीज़ आपके लिए भी है कि अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ भी मोटिव है, खुद से खड़े होने या कुछ करने का, सो आप मोस्ट वेलकम, आपको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, आपको भी रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे, तो आप भी मतलब ग्रो करिए साथ में। और बहुत सी चीज़ें हैं साथ में करने के लिए जिसके लिए हमें भी टीम चाहिए, हम अकेले नहीं कर सकते। शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स थे तो वी वी वर वर्क इन 3 और सर भी साथ में रहते थे। बट अब थोड़े से और लोगों की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया में हम लोग अभी काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं ज़िंदगी का जो मेबी अगर अमित सर आप नहीं होते तो इतना आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते, है बेटा, जिस इट्स तरीके से इट्स सब लोग। बेसिकली मैं आप सबको बताऊंगा, इट्स हार्ड वर्क ऑफ यान। मैं अपनी बात मैं एक्चुअली यस मैं बोल सर। रहा हूँ कि वी आर जस्ट आई एम जस्ट गाइडिंग देम। उसके बाद जो कुछ रहा वो सफर योगेश, आयुष और निकित ने तय किया। और मुझे पता है होपफुली आगे नेक्स्ट यही तीन जो है ये लीड करेंगे आगे। तो हमारा एक पॉजिटिव मोटिव ये है कि हम और स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। जिस तरह से आयुष ने बताया कि जॉब्स प्लेसमेंट्स की कमी नहीं है बट टैलेंट की कमी है। तो पहले हमारा मोटिव है टैलेंट एनहांस करें अपना और हमारे साथ ज्वाइन करें। और ये तीन ऐसे मेंटोर अब ये तीन ऐसे मेंटोर हैं क्योंकि इन्होंने काफी लोगों को ट्रेन किया है। और ये भी एक जर्नी थी कि being as a learner, then being as a trainer, and now we can registered as a on future we can registered as a company, and on future projects we can train our students also. Training program हम चलाएंगे, इसके तहत हम students को train भी करेंगे। Good morning, hello, Hello. hello ma'am. Yeah, wait a minute, ma'am will join us. Priyanka ma'am will join us. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Can you hear me? Yeah, ma'am. Yeah. Ma'am, Okay. actually, it's a Yeah. pleasure, ma'am. Today we have actually students and you all. Today we have a guest, Priyanka Shroff, ma'am, from IIT Powai. It's an honor to have you, ma'am, on this webinar. As soon we have collaboration with spoken tutorials organized by IIT Bombay. Ma'am, will you brief us about the mission and vision of your program? Definitely. So this is Priyanka Shroff. I'm project manager at IIT Bombay. Currently, I'm looking after National Schools program, and the program which we are talking about is Spoken Tutorial Project. It is an Government of India's initiative. It is an NMEICT MHRD Government of India's initiative to make India IT literate. So here we are working in order to spread IT literacy, and we are offering more than 70 courses, 72 courses, and all these courses are open source softwares. And open source softwares, as you might be already aware about, because you people are working with sir in order to give the training to students on softwares like Arduino and all the softwares you're using for robotics. So definitely these are the courses which will be very helpful for students to do best. And the main important thing is the courses are created in such a way that one student can learn by their own, so they don't need any help of teacher or trainer. Just we need to make these courses available to all the students so they can learn by their own. And very important thing is there that we see that many students face internet problem, yeah, because in rural areas we see there is no internet very much available. So how they can learn? So to reach up to rural areas, these courses will benefit in a big way because spoken tutorial courses are also offline and also available in all the major languages. So we have major 22 languages available for all the spoken tutorials. The student can learn by their own and can get the certificate from IIT Bombay. And also IIT Bombay is helping students in placements also. We are organizing campuses so that students can get job into the market. What happens many a times, the student says jobs are not available, we are unable to get job into the market. But very important thing is the students are not aware about that jobs are available into the market. Just once these courses are available to them, they will be able to learn, master the concepts,
and give their best. Even in their interviews, also, this will help them out. Many a times, what happens? We mug up, right? You might agree with me. You students are here, so you might agree. When you do C++, Java learning in your first year, second year, what happens? Generally, we mug up, right? And when we go in front of interviewer, what happens? Sometimes you forgot also. So here, when you learn through using a spoken tutorial, listening to the tutorial, practicing it side by side, it gives you proper learning, right? So once you do proper learning, you will not have to mug up anything. Everything will be on your tip. So this is the magic of a spoken tutorial. Till date, we have trained more than 67 lakh learners all over India, and also we are going abroad as well. And yes, this is about the program. This is useful for school students, college students, teachers, and for everyone. So, like we were talking to Sir, you students, you are a volunteers who volunteer and go to schools, help the students to learn some courses which can help them into it, like prepare robots and all these things. This is something very good. And I strongly suggest that you also should go for this software learning. And as decided, you can go and talk to principal of a schools. You can tell them how is this program very useful for their students. So we can get their teachers to learn this program. They can also give it to their students. Not only one course which we are offering, but we are offering so many courses which can help a student who are in eighth class, ninth class, them also to learn all these things, which can help them get better future, better job opportunities, improve their academics, and yes, so many things are there. So yes, here I would just like to congratulate you people that you will be the one who will be working with sir in order to give this learning to all the students. And yes, definitely, once you start volunteering with us, spoken tutorials definitely will be helping you in getting your job placements, and already committed that we will be helping you with the recommendation wherever you go for the job. So this is something which you will be doing for your growth as well as for your national growth. So this is something you will be working on national mission. So welcome you all on the board. Thank you so much Thank you, for ma'am. giving me the chance. Thank you, ma'am, for your for joining us and for your valuable suggestions. We will definitely go for that, ma'am. Thanks for giving us time, ma'am. My pleasure, sir. Thank you, ma'am. Shall I leave, sir? Yeah, sure, ma'am. Sure, ma'am. Sure. Thank you for all students. As madam has told us that actually, ma'am ने जो बताया अभी, हम यही उनका एक विजन है आईआईटी का कि हम साथ में काम करें और पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे लेके जाएं. तो हमारा यही मिशन था कि पहले विद द हेल्प ऑफ आईआईटी पवई they trained us and then we can train the other students also. तो हम यही शुरुआत कर रहे हैं कि फर्स्ट अपने सुना भी था, आप अगर अच्छा कुछ कर रहे हैं तो आप 3 और लोगों को पास करें अपना टैलेंट. तो वैसे ही अभी हमारे 3 लोग हैं, योगेश, आयुष और निकित. अब ये टैलेंट हम चाह रहे हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे पास करें और आईआईटी पवई हमारा सपोर्ट, आईआईटी पवई का हमारे पास सपोर्ट है. They will provide us video lectures. They will provide us certification. They will provide us job opportunities. They will provide us talent. They will provide us platform. Everything. So, with this good note, I thought कि हमें आगे इनके साथ काम करना चाहिए और मैं आप सबसे ये इनिशिएट करना चाहूंगा कि आप सब भी जुड़ें इस टीम के साथ. और मैं आपको बता दूं कि आज का शेड्यूल जो था वो शेड्यूल कैसा शेड्यूल रहेगा कि हम आपको क्या क्या देंगे और इस सबसे बताएंगे. Basically, we will brief you about the session. It's a 5-day learning program from 1st of November to 5th of November, under which we provides you the video links and quiz. Every day on 10 a.m. we upload the content where you have to watch the video and answer the quiz on the same day. We will provide you the e-certificate of participations will be issued to the participant who will submit daily quiz and feedback. Thank you for listening us patiently. Basically, ये जो मैंने आपको बताया कि हम आपको 5 दिन का शेड्यूल है,
हमने इन कोर्स को 5 अलग अलग दिन के हिसाब से वीडियो मॉड्यूल्स हमने बना रखे हैं। वो वीडियो मॉड्यूल्स हम आपको हर दिन जो हमारा ग्रुप है हम उसमें अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करेंगे, और आपको उन वीडियोस को देखना है और उसके बाद उसके क्विज के आंसर्स देने हैं, और लास्ट में हम आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे और क्विज के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि योगेश जो है मेरे टीम लीड कर रहे हैं, योगेश, आयुष और निकेत, कंक्लूड करते हुए योगेश आप अपना कांटेक्ट नंबर, आयुष आप भी अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, और निकेत अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी हमारे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे फ्लाइंग गया था, तो एटलीस्ट वो आपके नंबर्स को सेव कर लें। बच्चे आप सब इनका नंबर सेव कर लीजिएगा, योगेश, आयुष और निकेत का, क्योंकि ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसके एडमिन 2 है, योगेश और निकेत। तो योगेश, shall we conclude for this? हेलो योगेश। यस सर, यस सर। तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा, निकेत आप भी अपना नंबर दे दीजिएगा। आयुष, आई थॉट आयुष लेफ्टेड अस। आयुष, आर यू देयर? आयुष। तो योगेश आप बताइएगा, बताते चलिएगा, तब तक मैं पीछे से प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दिखाते जा रहा हूँ कि हमारे क्या क्या काम थे। ठीक है? यस सर। ओके। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपके सामने योगेश और निकेत, जो कि मेरे Actually, हमने this बताया is था the कि picture when when government school student had means government school has announced the exhibition. जो हमने वहाँ जो सिखाए थे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था। तो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि आप उन्होंने कितने एडवांस प्रोजेक्ट बनाए। जो आप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे होंगे वो स्मार्ट रोवर है, जो कि फोन से कंट्रोल हो सकता है। देन फ्रॉम द सेकंड लास्ट मींस फ्रॉम द लेफ्ट एक होम ऑटोमेशन है, जिसको आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू कम पे वो कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि लेजर सिक्योरिटी डोर, देन RFID डोर लॉक्स, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दैट वी मेड इन द स्कूल इज ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही आपका जो वाटर टैंक है अगर वो फिल हो रहा है, तो जो पंप है, वाटर पंप, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इससे क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है, साथ साथ हमारा जो पानी है वो भी वेस्ट नहीं होता। निकेत आप भी कुछ बताएंगे? निकेत भी साथ में है हमारे, निकेत हमारे क्रिएटिव हेड हैं। निकेत, हेलो। ओके, मे बी शायद वॉइस नहीं जा रही। योगेश आप ही कंक्लूड कर दीजिए, अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा। यस सर, ऑलरेडी गिवन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डाल दिया आपने। स्टूडेंट्स यस सर। आप चैट बॉक्स से जाके योगेश सर का नंबर आप नोट कर लीजिए, है ना? तो तीनों और ने डाल दिया। हाँ, तीनों ने डाल दिया ना। देखिए ये योगेश, और ये हमारा देखिएगा, ये जो हमने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये हमारा प्रोजेक्ट जो हमने जो योगेश और निकेत ने ट्रेन किया था स्टूडेंट्स पे, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं देखिएगा। तो जब ये स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, तो आई होप कि आप सबको भी कर सकते हैं। तो जॉइन अस एंड जॉइन यान ऑन दिस बेटर नोट। जस्ट इस कॉन्वर्सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको क्विज अपलोड कर देंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। Thank you, ओके, everyone. थैंक यू sir. एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। एंड आई होप आप सबको आपने कुछ सीखा होगा, है ना? And thank you for listening, and thank you for listening us patiently. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, Okay. sir.